Shavi, have you seen the recording of last class? Good evening, sir. Good Yes, evening. sir, I have seen. Okay. So, any doubts from exercise 8.1, 8.2? Is it clear? Yes, sir, it is clear. Okay. So, let's start with the next exercise 8.3. So, exercise 8.3, it is in page number 475. Page number 475. So this exercise is based on formation of differential equation. Okay, formation of differential equation. So you have a equation with x and y will be given to you, and you have to formulate a differential equation from that. Okay, so let's see first question what is given. Write the order of differential equation for the family of curve x square plus y square is equals to a square, where a a is arbitrary constant. Here a is arbitrary constant. So here we have only one arbitrary constant. So the differential equation for this equation will be of order 1 only, because number of arbitrary constant is equals to order of differential equation. Clear? So that's why first equation will have first order differential equation. Now for the second part, write the order of differential equation for the curve y square is equals to 4ax. So इसका क्या होगा order? अगर इसका differential equation बनेगा तो order क्या होगा? बताओ जल्दी. हाँ? 1, Yes, 1, one, because we have only one arbitrary constant. Now for the third part of question number 1, the equation of curve is y square is equals to 4ax minus b. So here we have two arbitrary constant. So what will be the order of differential equation? It will be of order 2, correct? Okay. yes, sir. Now let's move to the next question, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की फैमिली है, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx, वेयर m इज आर्बिटरी कांस्टेंट. सॉरी, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है. मेरी बात ध्यान से सुनना. यहां पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? only one arbitrary constant is there. So the differential equation will be of order 1. Okay, and our objective will be to remove this arbitrary constant. So for that we will write m in terms of x and y. So here m will be equals to y upon x, correct? We will write m, arbitrary constant, whatever the constant is there, we will take that constant in one side and remaining all the variable on other side. After that we will differentiate this equation. So it will be d by dx of m, that is equals to d by dx of y upon x, correct? So in the left hand side derivative of constant is 0. In the right hand side we will apply quotient rule. So what is quotient rule? First we will get the square of denominator in denominator, so it will be x square. फिर उसके बाद क्या आएगा? denominator d by dx of numerator minus numerator, it is y into d by dx of x. So ये quotient rule याद रहना चाहिए, ठीक है? आफ्टर दिस ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी. इन द राइट हैंड साइड वी विल गेट x, and further to this term dy by dx we can simply write it as y1. Here y1 is nothing but first derivative of y, that is dy by dx, okay, minus y, and the derivative of x with respect to x is 1. So further shift this y here and you will get y is equals to x into y1.
दैट्स इट, दिस विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? कोई डाउट इसमें तो पूछो। ओके बाकी अनुश्री और रिया एक्नॉलेज करो, कैमरा ऑन नहीं है तो तुम लोग का, या तो कैमरा ऑन करके बैठो। सर समझ आया, लेकिन एक बार आप आर्बिट्री कांस्टेंट बता दो ना। क्या बता दूं? आर्बिट्री कांस्टेंट। आगे के क्वेश्चंस। आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब क्या है? जो एक्स और वाई को छोड़ के जो भी कांस्टेंट गिवन है किसी कर्व में, वो आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल में थोड़ा आगे धीरे धीरे बताते जाऊंगा। देखो जैसे कि ना सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट यहां पर से पता चलता है, एच कॉमा के। तो एच कॉमा के सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, और आर जो है उस सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब अगर मान लो इक्वेशन ऐसी लिखी हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे 0,0, और यहां पर आर की वैल्यू गिवन नहीं है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब रेडियस अलग अलग हो सकता है लेकिन सेंटर कहां है? 0। तो ये भी एक सर्कल हो सकता है, ये भी एक सर्कल हो सकता है, ये भी एक सर्कल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जिनका सेंटर तो फिक्स है 0,0 पे, लेकिन आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग उनका साइज और रेडियस अलग अलग होगा। तो इसलिए इसको हम फैमिली ऑफ सर्कल बोलेंगे। ये एक सर्कल की फैमिली है। क्लियर ये चीज? तो आर्बिटरी कांस्टेंट वो एक कांस्टेंट होता है जिनके नंबर अगर हम अलग अलग पुट करते जाएंगे तो हमको कर्व्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के। क्लियर ये चीज? यस। ओके, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। डीई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे लिखा है of the family of straight line y is equals to mx plus c। y is equals to mx plus c एक straight line की इक्वेशन है। इसकी एक फैमिली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि m और c की वैल्यू अगर अलग अलग होगी तो लाइन अलग अलग टाइप की बनेगी, इसलिए। ठीक है, m और c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। वेयर m एंड c आर आर्बिटरी कांस्टेंट। तो देखो यहां पर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मतलब कि हमको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ mx प्लस d बाय dx ऑफ c। करेक्ट? यहां dy बाय dx को हम y1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां पर mx का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो m कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? ओके, अब सेकेंड टाइम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज दो बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि दो आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो d बाई डी एक्स ऑफ y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m। तो यहां पर y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो उसको हम y2 लिख देंगे, और ये m का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, कुछ बोल रहे हो? हाँ, ये थोड़ी ना कोई सी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। क्या? y2 equals to 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुई ये बोल रहे हो? हाँ। y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल वाली टर्म है, और इज इक्वल्स टू 0। जब भी इक्वल्स टू 0 वाली एक्सप्रेशन मिलेगी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, x इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिखता हूं तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन की इक्वेशन है?
x इज इक्वल्स टू 0 एक्चुअली y एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन है। y एक्सिस को हम x इज इक्वल्स टू 0 भी बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, हटा दो इसको मैं। Yes, sir. ओके, So Next. basically double derivative will be the differential equation only. yes, we are getting second derivative. It means we have terms of derivative, and we are getting equals to 0 or equals to any constant, whatever can be there. But if we have derivative terms and an equation, then that will be called differential equation. Simple. Okay. Yes, sir. Okay. Now the next question from question number 4. Look at the question number 4. Question number 4. Find the differential equation not containing arbitrary constants and satisfies the following equation. So the first equation from this is y is equals to ax cube. So here we have only one arbitrary constant, that is a. Okay, and we have to formulate differential equation. Sir, third? क्या थर्ड? अच्छा, थर्ड स्किप हो गया क्या? सॉरी, फोर्थ ले लिया मैंने। चलो ठीक है, इसके बाद थर्ड बता दूंगा। ठीक है, ओके। सो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। सिंगल आर्बिटरी कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, और आर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करना है, मतलब ए हटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ए के टर्म्स में लिखेंगे इसको। ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स क्यूब, यही होगा। अब डिफरेंशिएट कर दो तो a रिमूव हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ a इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। राइट साइड में अगेन कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल जब लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर। फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर into d by dx of numerator, so d by dx of y minus numerator मतलब कि y, d by dx of denominator, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये 0 एज इट इज, एक्स क्यूब, y का डेरिवेटिव ये हो जाएगा y1 माइनस y, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x रेस टू पावर 6। अब x रेस टू पावर 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब y1 माइनस 3x स्क्वायर y। क्लियर? इसको उधर शिफ्ट कर दो, सो 3x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब y1। ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, क्वेश्चन 4 के बाकी पार्ट्स बन जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड उसको मैं होमवर्क दे दूं, देख लो। So like the previous question we solved where it said that where m and c are arbitrary constants. यस, And in this fourth question, it says that form the differential equation not containing the arbitrary constants. Sir, but like the procedure is same only. Like what else is different here in both the equations? nothing is different. Actually, in previous question we have two arbitrary constant. We have to remove both the arbitrary constant, and we have removed both of them. Here also we have to formulate a differential equation not containing arbitrary constant. It means we have to remove this a. So it is same. Okay. Just one Yes. arbitrary constant is there, so we will get a first order differential equation. That's it. Okay. Yes, sir. Okay. Similarly, rest of the question from fourth part you can solve. So I can give you homework. Next two questions. Sir, I Now doubt let's in second one. second. No problem with that उसमें question. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसको तो क्या होता है, तो भी उसका डेरिवेटिव 0 होगा। देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, इक्वेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, तो ऐसा लगा देना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0 होगा, कोई उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है ना। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर आर आर्बिटरी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर दो सीधा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ रिया? 2x हाँ, और इसका 2y dy by 2y, dx करेक्ट, 2y dy by dx। और राइट साइड में डेरिवेटिव क्या होगा? 0 जीरो, खत्म। तो 2x प्लस 2y और dy बाई dx को y1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 कॉमन निकाल के डिवाइड बाय 0 कर, उधर 0 के डिवीजन में भेज दो। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0। बन गया ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। क्लियर? So the only thing you have to keep in your mind that you have to remove arbitrary constant. For that you have to take that arbitrary constant one side and differentiate that equation. Okay. If we have more than one arbitrary constant, if we have two arbitrary constant, we have to differentiate 2 times. So similarly, now let's move to the next question, that is question number 5. I think you can face difficulty in solving that question. Try to solve that question. Question number 5, first part. इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, देखो क्या होगी। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस y minus b whole square is equals to 1. Now if we differentiate directly, then the term arbitrary constant b will not be removed. b नहीं हटेगा ना, सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो रिया? नहीं, गलत बोल रही थी। y माइनस बी को t ले ले तो नहीं, वैसा तरीका नहीं है, मतलब उससे ब्रैकेट कुछ ओपन कर देंगे बस। ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना, तो भी वो बी स्क्वायर वाली टर्म कुछ ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी। हमको बी को एक तरफ लाना है, बाकी सब दूसरी तरफ चाहिए। तो देखो मैं जो तरीका बता रहा हूं सामने ध्यान दो। क्या करते हैं हम सबसे पहले y माइनस बी होल स्क्वायर यही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, सो y माइनस बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब b वाली टर्म एक तरफ और नॉन b वाली टर्म दूसरी तरफ, तो ये वाली माइनस b वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो और ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा y माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस b। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये अब हमने आर्बिटरी कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल्स वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस। वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं होता, इस वजह से। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर ऐसा होता रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, तब इसको हम रूट 1 माइनस एक्स लिख सकते थे। समझ में आया? ओके। यहां तक आने के बाद अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कौन बता रहा है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का So like root x is 1 equals to upon 1 upon 2 root x. So we will break it in that form. So it will be 1 upon 2 root 1 minus x square into 2 minus 2x. यस, रूट 1 अपॉन 2 रूट x, चेन रूल अप्लाई होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म जो अंदर है 1 रूट। minus 2x. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं, 1 का तो 0 हो जाएगा ना, 0 माइनस 2x। Yeah, yes. ओके, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर? ओके, फर्दर it is like y1, we can replace dy by dx with y1. Further it is like minus minus plus, तो ये प्लस हो जाएगा 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट।
Further, we can simplify these expressions like y1 is equals to, अगर पूरी टर्म उधर शिफ्ट होगी तो माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 minus x square. Now we can cross multiply this term and we will get y1 into root over 1 minus x square is equals to minus x. Now we can do squaring both the side. So squaring both the side, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. समझ में आया? ब्रैकेट ओपन कर दो तो y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो तो y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 1. अब मैं ये जो सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं ना, ये मैंने ऐसे ही कर दिया. अगर आप आंसर यहां पर भी छोड़ देते तो भी करेक्ट होता, मतलब रूट वाली टर्म हट जाए तो बेटर है. यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो. ओके रिया, अनुश्री, क्लियर? ओके चलो ठीक है, हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, फिफ्थ का सेकंड पार्ट. Yes, sir. स्टेप नंबर 1 बस मुझे बता दो फिफ्थ के सेकंड पार्ट में, बाकी मैं छोड़ रहा हूं उसको. फिर फिफ्थ का सेकंड पार्ट अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. यस करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. जस्ट एक तरफ ए रहने दो, बाकी पूरा दूसरी तरफ अपॉन में जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कर देना. कोशेंट रूल प्रॉपरली अप्लाई करना, वहां गलती कर सकते हो बिकॉज. ठीक है ओके, सो फिफ्थ का सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन. Now in question number 6 we have two arbitrary constant, so the differential equation will be of order 2. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो शबी? So like we can take LCM and then solve it. Yes, by that way we can also do, but if any other way is also possible, we can look at that perspective also. I think by taking LCM, So because then we'll have B with X and A with Y. yes we can. So it will be equal to. It is x upon a plus y upon b is equals to 1. अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कर रहे हैं ना, बाकी लोग भी वही बना रहे हैं ना, रिया, अनुश्री? ओके सो yes, we can take LCM, then we can differentiate, or we can directly differentiate also. Both the options are there. So if we take LCM, it will be like bx plus ay is equals to ab. We take LCM and then cross multiply, we will get this equation. इसमें कोई डाउट तो नहीं ना रिया? हाँ, अब डिफरेंशिएट कर दो. सो डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल बी d by dx of bx plus ay is equals to d by dx of ab. Correct? So derivative of bx will be b, derivative of ay will be a into dy by dx. In the right hand side, derivative of this part will be 0. Correct? यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे बताओ? It is like b plus a y1 is equals to 0. यही हुआ. अब देखो एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ अभी हमारे पास, लेकिन एक और ऑप्शन है सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने का. करेक्ट? बिकॉज दो सेकेंड ऑर्डर होगा. अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यहीं पर कर दो डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट करेंगे सो बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. करेक्ट? यहां पर प्लस ए वाली टर्म एज इट इज, यहां पर क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ y1 दैट इज इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव तो 0 होगा. क्लियर? फर्दर ये एक्सप्रेशन देखो क्या होगा, ये a y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 दैट इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट? अब a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो y2 इज इक्वल टू 0 अपॉन a. 0 अपॉन एनीथिंग इज नथिंग बट 0. करेक्ट? सो यू गॉट y2 इज इक्वल्स टू 0. दैट्स इट. ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है?
कुछ डाउट? So it's like either we can directly eliminate the arbitrary constants or we can double derivative our equation to get the Yes, differential equation. yes. We have two arbitrary constant. That's why we have to differentiate it 2 times. Yes, sir. Okay. So let's move to the next question. Next question number 6, we have two arbitrary constants. So again, we have to differentiate it 2 times. I think you can solve that second part. But for the 7th question, let me give you some hint after which you can solve it. The equation is y square is equals to 4a under bracket x minus b. So the first step should be like this. You have to write it like this: 4a is equal to y square upon x minus b. It will be easy because on the left hand side you have 4a. So now if you differentiate, तो देखो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है. समझ में आ रहा है? एक यहीं पर रिमूव हो जाएगा और यहां पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएट कर दो, इसका 0 हो गया. राइट हैंड साइड में क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा तो x माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर पे क्या आएगा x माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी. ऐसा हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद ये वाला पूरा टर्म तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो लेफ्ट साइड पे 0 बचा. x माइनस बी. अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ तो? एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो जल्दी. 2y dy by dx. करेक्ट, 2y dy by dx. ठीक है. माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ x माइनस बी का डेरिवेटिव बोलो जल्दी. इसका डेरिवेटिव 1, तो इंटू 1, दैट्स इट, खत्म. समझ में है यहाँ तक? अभी एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, एक वेरिएबल भी अभी हटा नहीं है यहाँ पर. ठीक है. अब इसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y x माइनस बी इंटू y1. हाँ बोलो. उसका डिनोमिनेटर किसका डिनोमिनेटर? 0 हो गया ना. हाँ ठीक है. यहां तक क्लियर हुआ स्टेप? अब क्या करोगे ये बताओ मुझे. डबल डिफरेंशिएट. अभी तुरंत. हेलो. हाँ, जो व्हाट्सएप किया वही भेज देना, वही बना देना, जो भी देख लेना. ठीक है. हाँ बना दे. ठीक है. हाँ बताओ क्या करेंगे. देखो, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट तो डेफिनेटली करना ही है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब क्या है b, वो हटना चाहिए. क्लियर ये चीज? अगर ऐसे ही कर दोगे तो वो नहीं हटेगा. तो उसके लिए ऐसा कुछ करो कि बीज वाली टर्म एक तरफ हो जाए, बी वाली टर्म एक तरफ हो जाए, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर ऑन अदर साइड. सो फॉर दैट first you have to simplify this equation. So cross multiply these two terms, like 2y and y1. Cross multiply these two terms in the left hand side. So it will be like y square divided by 2y into y1, that is equals to x minus b. Is it clear? Now this y and this y gets cancelled out. Now shift this minus b to here and this term to this place. So you will get b is equal to x minus y upon 2y1. Okay. Now differentiate this expression. Okay. So after this, you will get 0. It is like d by dx of b, that is equal to d by dx of x minus 1 by 2 d by dx of y upon y1. Correct? So derivative of this part will be 0. So Derivative. what if we differentiate it with respect to y for y upon 2y1? No. We have to differentiate with respect to x only. Okay, we cannot change the derivative, because if we are we have already differentiated first time with respect to x only. That's why. Yes.
minus 1/2. Here we will apply quotient rule. So it will be like y1 square, and here it will be y1 d by dx of y minus it will be y d by dx of y1, correct? So 0 is equals to 1 minus 1 by 2 y1 square under bracket. This term will be y1 into y1 minus this term will be y into y2, correct? Now further you can simplify and rearrange all the terms in order to equate your result as given in question, as given in answer. Okay, ये क्लियर आगे बन जाएगा ना अनुश्री, रिया? ठीक है, छोड़ दे, आगे बढ़े, फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, I think question number 8 is more important as compared to others. Okay, so let's see question number 8. Y is equals to a e raised to power 2x plus b e raised to power minus 2x. Here we have two arbitrary constant. First one is capital A and second one is capital B, correct? We have to remove both of them. So first step will be, we have to differentiate it the first time. So it will be like dy by dx, that is equals to a. Derivative of e raised to power x is same, e raised to power x only. Okay, and here the derivative of this term will be minus 2b e raised to power minus 2x. ये step a e to the power 2x है. अच्छा, e की पावर 2x है क्या? सॉरी, करेक्शन कर लो। ओके, e टू द पावर 2x और ये 2x, तो यहां पर भी 2 आ जाएगा ना, ठीक है? अभी क्लियर? अब एक बार और डिफरेंशिएट करो। ये एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया y1, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे dy1 by dx, that is actually y2. So when you differentiate this equation second time, you will get 4a e raised to power 2x, correct? और इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस वाले पार्ट का? Plus 4b e to the power minus 2x. करेक्ट, प्लस 4b e raised to power minus 2x, करेक्ट? अच्छा, दोनों बार डिफरेंशिएट कर दिया बट आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? हाँ, कॉमन ले लेंगे शायद। नहीं ले सकते। हाँ, minus 2x है ना वहाँ पावर में। यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से हम कुछ कॉमन ऐड कर सकते हैं पावर? नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें देखो ना, इसमें ध्यान दो जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, और इस पे ध्यान दो, दोनों के राइट हैंड साइड को देखो। इसमें हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। वी कैन टेक 4 कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। इफ वी टेक 4 कॉमन, देन दिस टर्म विल बी लाइक प्लस b e raised to power minus 2x, correct? And this term is exactly equal to like this. चेक करो, देखो ये वाली टर्म सेम है कि नहीं? सो ये पूरी टर्म की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, किसके इक्वल है वो? y के। सो वी कैन रिप्लेस दिस कंप्लीट टर्म विथ y, सो इट इज लाइक y2 is equal to 4y. दैट्स इट। ओके, समझ में आया? सर ये फर्स्ट स्टेप में y1 equals to ये जो यहाँ से लिखा है, तो ये 2 तो उधर का आया ना, तो 2a e to the power x होना चाहिए ना फिर तो। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना होता है, होता था उसमें। ये देखो कैसे होता है। नहीं, ऐसा मत बोलना होता था, ऐसा नहीं होता था। देखो इधर d by dx of e raised to power mx है, तो सबसे पहले e raised to power mx को हम t लेते थे। चेन रूल याद करो, तो e raised to power t का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to power t होता है। फिर जिसको t लिया उसका डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब mx का डेरिवेटिव लेते हैं, तो d by dx of क्या आएगा? mx आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर e raised to power t मतलब e raised to power mx हो गया, और mx में m बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो ये होता है m e raised to power mx। समझ में आई ये चीज? चेन रूल एकदम सबसे पहले हमने किया था ये चीज। ओके,
सर तो ये फिर कहीं और था, प्रॉपर्टीज। वो इंटीग्रेशन वगैरह को मिला दिया होगा, हो सकता है कहीं पर। ठीक है, ये चेन रूल सबसे बेसिक इंटीग्रेशन के अंदर हमने किया था, एक शीट सॉल्व किया था तब का पार्ट है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल वाले। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे समझोगे, बट ट्राई करते हैं। ये प्रीवियस वाला हटा दिया, ठीक है ना, ये हो गया ना। हम्म, ये सब तो आता ही नहीं है, कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन। हाँ, ये मैं इसीलिए पूछ रहा था, तुम लोगों ने क्लास 11th में ये सब पढ़ा है क्या? सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन वो नहीं तो पढ़ा है? याद मतलब था, सिलेबस में था। हाँ। ओके ओके, बिकॉज मैंने सिलेबस चेक किया तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सिंपल मेथड्स ये टॉपिक है। ठीक है, सो फॉर्मेशन के अंदर ये टॉपिक तो आएगा, वैसे तो हटा दो इसको मैं। ओके, सो कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जो प्री रिक्विजिट है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यहां पर मैं एक सर्कल कंसीडर कर रहा हूं। ओके, इधर देख लो, ये हो गया सपोज सर्कल। सर्कल का सेंटर है सपोज ओ, जिसके की कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, क्लियर, और सर्कल का रेडियस है सपोज आर, जिसका की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, सॉरी, सर्कल का रेडियस है आर। ठीक है, वो आर किसी भी पॉइंट से हम ले सकते हैं। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच, उस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर ये चीज? अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन, मतलब ये एच के की वैल्यू कहां पर आएगी? 0 0 पे, यहां पर आ जाएगा 0 0। समझ में आई ये चीज? तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ये कब? जब सर्कल का सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे। क्लियर? अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोलता है कि सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस में है, सर्कल का सेंटर अगर वाई एक्सिस में होगा तो ये सर्कल देखो इस तरह का कुछ आएगा, वाई एक्सिस में आ जाएगा यहां पर। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा सर्कल के, अब वो क्या हो जाएगा? अब वो हो जाएगा 0 कॉमा के। क्यों 0 कॉमा के? क्योंकि अब उसका सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस में आ रहा है, तो वाई एक्सिस में आने वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब अगर थर्ड केस मान लो सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस में आता है, जैसे कि इस तरह से यहां पर आ गया सर्कल का सेंटर, तो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट अब उस केस में क्या हो जाएगा? h कॉमा 0, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको सारी कंडीशन ये चीज ध्यान में रखनी है, क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग सर्कल की इक्वेशन बनेगी। ओके, हटाओ इसको, मैं अब क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, सो देखो जल्दी से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। जिसमें फर्स्ट में क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर 1,2। तो सर्कल का सेंटर आपको गिवन है, सेंटर मतलब ओ, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2। रेडियस आर जो है वो आर एज इट इज रहेगा, वो हमको पता नहीं है। क्लियर ये चीज? तो सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने क्या बताया? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही बताया था मैंने। इसी इक्वेशन में h और k की वैल्यू पुट कर दो और r जैसा का वैसा छोड़ दो, r जैसा उसको वैसे ही रहने दो। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इज इट क्लियर? Put the value of h and k as 1 and 2 and r we don't know the value of r, so let it be r as it is. Okay? आपने x को r क्यों लिखा है?
ओ सॉरी, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये x माइनस 1 है. यस, ओके, इट इज x माइनस 1 y माइनस 2. ओके, क्लियर इज दिस step? Now you have to formulate differential equation. So it is quite easy. Differentiate this equation. That's it. The right hand part will be 0 because r is constant. So, and you will find the differential equation. Okay, further you can solve this question. Can we move to the next? Yes, sir. Okay, so let's move to the second part. Second part of ninth question. So what is given? All the circle. Now read the question carefully. What condition is given to you? Circles in the first quadrant touching the coordinate axis. So how the circle will look like? Let Sir, us आपने consider. हाँ, क्या बोल रहे हो? आपने कर दिया, सेकंड वाला मैं- कर दिया ना. अच्छा, मैं थर्ड, सॉरी, मैं थर्ड पढ़ लिया क्या? हाँ. हाँ, चलो ठीक है, थर्ड पढ़ लिया तो थर्ड ही पहला कर लेते हैं. ठीक है. ऑल द सर्कल्स टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है. तो देखो सर्कल कैसा बनेगा. सर्कल कुछ ऐसा बनेगा. जस्ट अ सेकेंड. सर्कल विल लुक लाइक दिस. करेक्ट. ये है ना सर्कल. सेंटर देखो यहां पर आ गया O. देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है. सपोज इसको पॉइंट ए पे टच कर रहा है, पॉइंट बी पे टच कर रहा है. क्लियर ये चीज? ओके. और आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन में आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, बट यू कैन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. ओके. So the distance between O and A will be what? It will be R, radius of circle. The distance between O and B, it is also like R, correct? So the coordinate of O will be R comma R, correct? ये चीज क्लियर? अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, करेक्ट? तो यहां पर h और k के प्लेस पे क्या आ जाएगा? r r आ जाएगा. सो इट विल बी लाइक x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, करेक्ट? Now further we can simplify and differentiate this equation and we will get the differential equation. बन जाएगा ये आगे क्वेश्चन. इसमें कोई डाउट तो नहीं ना ये फंडामेंटल में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे हिंट के बाद. सर एक बार ये सॉल्व करा दो पूरा. ओके, चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं. फर्दर ध्यान देना. देखो कैसे सॉल्व कर सकते. वी कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इफ वी डिफरेंशिएट डायरेक्टली देन इट विल बी लाइक, or we can expand after that. We can differentiate. Both the options are there. If we directly differentiate, then it will be like 2 times x minus r. Now the derivative of x will be 0 plus 2 times y minus r into, it will be like dy by dr, that is equals to 0, correct? Now we can take So dy by dx or dy by dr? sorry, dy by dx. Now we can take 2 common, तो ये हो जाएगा x minus r plus y minus r dy by dx, that is equals to 0. 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. x minus r plus y minus r is equals to dy by dx, that is equals to 0. Further dy by dx will be equals to minus x माइनस आर डिवाइडेड बाय y माइनस आर. यही होगा एक्सप्रेशन. अब इसके बाद r की वैल्यू फर्दर पुट करनी पड़ेगी, बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो. स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके
So we will double differentiate it. No, we cannot do, because only one variable is there, so we cannot differentiate two times. Okay, another way will be like this. We can open the bracket. Another way, we can just expand this expression. Okay, so, this expression actually, तो यहां पर अगर एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xr प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. और इसके बाद भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, यहां पर टर्म्स क्या बचेंगी, आर स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी माइनस 2. देखो मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं ना, थोड़ा सा ये लेंदी है, बट माइनस 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू आर plus x square plus y square, that is equals to 0. Further, r is equals to ये काफी लंबा बन जा रहा है आगे. ओके, यहां तक के स्टेप तक क्लियर था ना. देखो यहां तक का स्टेप क्लियर है ना, यहां तक का स्टेप एक बार बताओ सब. ठीक है, इसके बाद मैं एक फ्रेश पेज पे जा रहा हूं, समझाते हुए समझना, काफी लंबा बनेगा ये सॉल्यूशन इसका. ठीक है, सो यहां पर इस स्टेप के बाद मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना. ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये कर रहा हूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दे रहा हूं. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2xr प्लस आर स्क्वायर. क्लियर ये स्टेप. सिमिलरली यहां y माइनस आर होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दूंगा तो y स्क्वायर माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ये स्टेप क्लियर हुआ. अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, जहां डाउट होगा तुरंत पूछना. ठीक है, आर स्क्वायर इधर लेफ्ट और राइट वाला कट जाएगा. अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं. रीअरेंज ऐसे कर रहा हूं कि आर की पावर सबसे बड़ी वाली सबसे पहले, तो आर की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी, आर स्क्वायर वाली, तो उसको सबसे पहले लिख रहा हूं आर स्क्वायर. फिर आर की पावर 1 वाली टर्म्स, मतलब कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूं. देखो ये दोनों टर्म्स क्लियर. इन दोनों टर्म्स को जब एक साथ लिखेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, -2r कॉमन निकल जाएगा. और ब्रैकेट के अंदर पे क्या बच जाएगा, यहाँ x और यहाँ पर क्या बचेगा, +y. क्या ये स्टेप क्लियर हुआ. फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द टर्म्स कौन सी बची, +x² + y² बची, दैट इज इक्वल्स टू 0. एक बार चेक करो और बताओ यहां तक क्लियर क्या. ठीक है, ये एक्चुअल में, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो शैवी. Okay, this is actually a quadratic equation of r. Clear. Now we have to take r one side and rest of the terms other side. Okay, so that we can, when we differentiate, we can eliminate the term r. Clear. For that, we have to solve this quadratic equation, and we have to equate this quadratic equation with the standard form, which is ax² plus bx plus c is equals to 0. Remember, just recall class 10th, we have solved this type of quadratic equation by using quadratic formula. Now, what was the quadratic formula? It was x is equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. याद है ये फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास देखो वैल्यू क्या है, हमारे पास r की जगह पे क्या आ रहा है x, सो वी विल राइट x, okay, that is equals to minus b. So what is b here? Here b is minus 2, the value of b will be minus 2 into x plus y, correct? So this is our b, so it will be like minus minus We will plus, keep r aside. huh? So we will keep r aside, like we will not solve it in the equation. We will So r, r, like we have minus 2r, no? So like where we will be keeping r in the equation? no, we will not put r here. Here the coefficient of r will be considered as b. So whatever the coefficient of x in case of this quadratic equation will be considered as b. In this case, the coefficient of r is these two terms. Okay, so we will take these two Yes, terms sir. as b. So 2 times x plus y, it will be like this because minus b is there. Plus minus root over b square. So b square, it means square of this term. So minus 2 under bracket x plus y bracket close whole square. B square minus 4ac. So it will be like minus 4a ki value. The value of a is 1. Now look at this. The coefficient of r square is 1. So the value of a is 1. Correct? So further, it will be like minus 4 into 1 into c. C is x square plus y square. Is this step clear to all of you? Divided by 2a. So it will be like 2 into 1. चेक करो और बताओ इस स्टेप में कोई डाउट है तो। सर इसमें यही प्रॉब्लम जा रही है एबीसी को आइडेंटिफाई करने में। अरे सिंपल है, देखो यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो a है, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं, मतलब वो a हो गया। जो r का कोफिशिएंट है ना वो b है, तो यहाँ पर r का कोफिशिएंट क्या है, r को छोड़ के जो टर्म्स दिख रही है मिडिल टर्म में वो b हो गया, सो ये पूरा b है। देखो यहां पर लिख देता हूं, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई एंड c इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म c होगा। क्लियर हुआ? So, but why can't we take r? Like, although we have to eliminate it, but like it is not satisfying the equation. We have taken coefficient for it, and the for like for r square we took the coefficient, but for single r we have taken minus 2x plus y. So that this is what coefficient of r. Now just recall this situation. Let us consider this equation, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Is it a quadratic? It is a quadratic equation. So if we want to solve this quadratic equation, we will apply a quadratic formula, which is x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, correct? So the b, the term b will be, so b will be the coefficient of x, which is minus 5, correct? So we will take minus of minus 5 like this, plus minus root over b square. So again b square is minus 5, so we will write minus 5 square plus minus 4a. The value of a will be like 1 because coefficient of x square is 1. So minus 4 into a into c, like this, divided by 2a, so 2 into 1. Same thing I am doing here also. Still not getting this? Clear हुआ या नहीं हुआ? अनुश्री, रिया, शैवी? Could you please explain for x c is equals to x square plus y square? Like we do not have a coefficient there, we have directly considered both of these variables. No, look, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस 2r x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. This was the quadratic equation we got. Here the variable is x. We will consider in this quadratic equation as r a variable. Okay. So the equation of r will be like r square. Sorry. Equation of r will be like ar square plus br plus c is equals to 0. It will be like this. So we have to rearrange this equation in this form
For that, we Yes, will I write understood now. this r square as 1 into r square, plus we will write this equation as minus 2 into x plus y into r, plus we will write this term as x square plus y square, that is equal to 0. Now compare this expression and this expression, and you will get a is equal to 1, b is equal to this, and c is equal to this. Now you got this? Yes, sir. What about others? Riya, Anushri, समझ में आया? So here we got A, B and C. Now we are applying quadratic formula, which is here. So this is what quadratic formula, x is equal to this. Here माइनस आएगा ना, कहाँ माइनस पर? 2x प्लस y. नहीं, क्योंकि यहां पर पहले से माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है? ओके? Because already we have minus, so that's why minus and minus will become plus. Correct? Further, we have to solve this quadratic equation. For that, it will be like r is equals to 2 times x plus y प्लस माइनस रूट ओवर. अब यहाँ रूट के अंदर वाली चीजें समझो जल्दी से, ठीक है? बिकॉज थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा, पूरे डिटेल स्टेप्स में जाएंगे, इट विल टेक सो मेनी टाइम्स, सो मच टाइम्स. ओके, सो यहाँ पर यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे, सो इट विल बी माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 4. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ध्यान से समझना, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. करेक्ट? माइनस 4 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2. क्लियर यहां तक का स्टेप? क्लियर? Yes, sir. ओके. फर्दर r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस y. अब यहां पर ध्यान से समझना, नहीं तो फिर से डाउट आएगा. देखो इधर ये वाला 4 वाला टर्म, ये जो 4 वाला टर्म देख रहे हैं, दिस 4 and this 4, we can take these two 4s common in root. तो रूट के बाहर इसको कॉमन निकाला, तो यहां पर कौन सी टर्म बचेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. करेक्ट? सिमिलरली यहां पर क्या बचेगा? माइनस ओपन होगा ब्रैकेट, होगा ना, हाँ 2xy होगा ना, सॉरी 2xy. करेक्ट, 2xy. करेक्ट? डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट? यहां तक क्लियर? फर्दर 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस माइनस. अब इधर ध्यान दो, ये जो 4 है ये रूट के बाहर आ जाएगा. वी कैन टेक दिस 4 आउटसाइड द रूट, क्योंकि वो सबसे मल्टीप्लीकेशन में, सो ये बाहर निकलेगा. 4 रूट के, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 2. क्लियर हुआ? और रूट ओवर अंडर ब्रैकेट, ध्यान देना यहाँ पर, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, एंड यू विल गेट 2xy, दिस टर्म ओनली. करेक्ट? होल डिवाइडेड बाय 2. क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? फर्दर r is equals to, we can take 2 common from complete expression and it will be like x plus y plus minus root xy whole divided by 2. अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सो r is equals to x plus y plus minus root over xy. क्लियर यहां तक का स्टेप? ओके. Now we can differentiate this equation, because or one more thing which we can do, and after this, or directly we can differentiate this equation. Once we differentiate this equation, the derivative of r will be 0. Okay, in the right hand side, derivative of x will be 1, the derivative of y will be like y1. Correct? So here it will be plus minus, derivative of this term will be 1 upon 2 root xy into d by dx of xy. चेन रूल अप्लाई हुआ है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर जिसको आपने एक्स लिया उसका डेरिवेटिव. फर्दर 0 is equals to 1 plus y1 plus minus 1 upon 2 root xy. Now apply product rule here. So first function is x
derivative of y will be dy by dx plus second function y derivative of x will be 1. So ये बन जाएगा एक्सप्रेशन. ये दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते, सो ये वाली टर्म्स हो जाएगी और वी कैन टेक एलसीएम ऑल्सो. यहीं पर रहने दो, इसको y1 लिख देते. 0 is equals to 1 plus y1 plus minus x y1 plus y divided by रूट ओवर 2 times रूट ओवर xy. ये इस तरह का कुछ हो जाएगा. ये वाली दोनों टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में. ये वाली टर्म्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगी. सो इट विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x y1 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट xy. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो. स्क्वायरिंग करोगे तो इधर होल स्क्वायर, यहां पर इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग करने पे माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर. यहां पर ये हो जाएगा x y1 प्लस y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy. रूट हट जाएगा. फर्दर लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2y1 a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x y1 divided by 4xy. Now cross multiply this 4xy here. You will get 4xy plus 4xy into y1 square plus 2y1 into 4 into xy. That is equals to x square y1 square plus y square plus 2xy into y1. Now simplify these expressions. So यहाँ पर ये वाली दो terms add हो जाएंगी, ये वाली term और ये वाली टर्म. ओके, सो 4 2 जा 8, 8xy y1 प्लस 4xy, नहीं ये वाली टर्म्स नहीं होंगी ऐड, ये वाली टर्म y1 स्क्वायर है. 4xy इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y1 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 8. So basically y1 terms will take one side and the others on the other side. Yes, we just have to simplify these expressions as much as possible, or whatever terms we can add or subtract, we have to do that. Like these two terms can be added further, like 4, it is not 4x, it is 4y into y1. So we can subtract these two terms from here. Similarly, other terms can also be simplified. So whatever simplification is possible, we will do like that. Okay. So just look at the solution. It will contain, yes, third part we are doing. So further it can be factorized. So that factorization will be here. So further it can be factorized also, or you can leave your result here only. ठीक. Okay. So the one thing which you have to do is you have to remove that arbitrary constant. After that, simplification is up to you, how much you can do. It is like that. So once we have removed this arbitrary constant, after differentiating this expression, we have to simplify how much we are able to solve this. Okay. समझ में आया कि ये कैसे होगा? Okay. Now next questions. देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बच गए. क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन. नाउ द सर्कल विच इज टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. तो देखो यहां पर सर्कल कैसा बनेगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. ठीक है, सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है. तो सर्कल का शेप कैसा होगा, इस तरह का बनेगा सर्कल. क्या ये समझ में आया, एक बार बताओ जल्दी. ये एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है. क्लियर ये चीज? ठीक है. सर्कल का रेडियस अगर मैं आर कंसीडर करता हूं, लेट अस कंसीडर दैट द रेडियस इज आर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो जल्दी. So this is second one, no? हाँ, यस, आई थिंक इट इज सेकेंड वन. 0 का R.
हाँ क्या होगा 0, r, R. करेक्ट, 0, r। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है इक्वेशन। यहां पर x माइनस एच के जगह पे क्या आ जाएगा? 0, और k की जगह पे क्या आ जाएगा? r, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कर देना है, दैट्स इट। ये ज्यादा आसान है, उससे जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें इजीली आपको टर्म्स सेपरेट होते दिख जाएंगी। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर -2yr प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2yr। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना, बन जाएगा ये क्वेश्चन आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये हटा दूं मैं इसका 9 का 4th पार्ट। क्या लिखा है 9 का 4th पार्ट? जल्दी से पढ़ो। All parabolas having their vertices at origin and foci at y-axis। तो पैराबोला जिसका वर्टाइसेस ओरिजिन पे होना चाहिए और फोकाई जो है वो वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए, वाई एक्सिस में होना चाहिए। सो द पैराबोला विल लुक लाइक दिस, पैराबोला विल लुक लाइक दिस। इसका वर्टेक्स देखो ओरिजिन पे आया और इसका फोकाई किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे आ रहा है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला whose foci or whose face is toward y axis is what? पता है कि नहीं? ये क्लास 11th में पढ़ा था, कोनिक सेक्शन। इट्स इक्वेशन विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। नोट डाउन कर लो, मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं अगर याद नहीं है तो। So if the parabola is facing toward positive direction of y-axis, its equation will be x square is equals to 4ay. If it is facing towards negative direction of y-axis, its equation will be x square is equals to minus 4ay. ये नोट डाउन कर लो, यूज होगा, ठीक है। And if the parabola is facing toward positive direction of x-axis, its equation will be y square is equals to 4ax. And if it is facing towards negative direction of x-axis, its equation will be y square is equals to minus 4ay. Clear? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से चारों फॉर्म्स में जो पैराबोला के हाँ 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 सॉरी 4ax है, 4ax। चारों केसेस में पैराबोला के वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, देखो ओरिजिन पे है। बट इस केस में वर्टेक्स का इसका फोकस कहां पर आ रहा है? पॉजिटिव एक्स में। इसका फोकस कहां आ रहा है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। यहां पर फोकस पॉजिटिव एक्स में, यहां पर फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? सो ये कुछ बेसिक्स है पैराबोला से रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द पैराबोलास हैविंग फोकाई ऑन y axis, so the equation of parabola will be like this: x square is equals to 4ay and you have to find the differential equation. So इसको simply ऐसा लिख सकते हो 4a is equal to x square upon y। आर्बिटरी कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल पूरा दूसरी तरफ, अब डिफरेंशिएट कर दो, आ गया आंसर, दैट्स इट। रिया नहीं आया समझ में? आ गया ना? ठीक है, सबको क्लियर ये? ओके, नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट, इसको हटा रहा हूं मैं। 4th Sir, can you please move to that previous slide? Yes. So this 4 is equals to x square upon y. We will apply quotient rule here. Yes. So like 4a derivative will be directly 0. Yes. Here it will be denominator square, denominator, Yes, derivative exactly. numerator, it is 2x minus x square, it will be like y1. Now you will cross multiply this expression, it will be 0, and it will be like 0 is equals to 2xy minus x square y dash.
further you can shift this term, x square y dash is equals to 2xy. X and x gets cancelled out, you will get x y dash is equals to 2y, or further you can simplify. Okay, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Okay, in the next question, fourth part of question number 9. The equation of family of parabolas is like x square is equals to 4ay, where a is arbitrary constant. ये तो बन जाएगा, I think वो same hint question है. उसी क्वेश्चन का. नहीं वो कहाँ हिंट है, वो तो थर्ड का हिंट है ना. वो अच्छा तभी hint अच्छा है. थर्ड एंड सॉरी हाँ करेक्ट, थर्ड और फोर्थ का हिंट है, तो वो तो हो गया फिर. क्वेश्चन 9 तो हो गया ना फिर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Form the differential equation for family of circle with center on y-axis and radius 3 units. Okay. देखो यहां पर क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्कल जो है उसका सेंटर कहां पर है बोल रहा है वाई एक्सिस में. तो मान लो ये हो गया सर्कल, ठीक है. सर्कल का सेंटर आ रहा है वाई एक्सिस में, तो यहां पर आ गया सर्कल का सेंटर सपोज O, ठीक है. और सर्कल का सेंटर अगर वाई एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ऐसा कुछ होगा. 0, लिखना चाहिए, 0, ठीक है. और इसका रेडियस भी गिवन है. रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 3. सो इट इज r इज इक्वल्स टू 3. करेक्ट. सो सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. सो x माइनस h की जगह पे क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो k के प्लेस पे k ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. सो इट इज लाइक 3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9. समझ में आई ये चीज, क्लियर यहां तक. अब देखो क्या करना, जैसा हमने ऊपर एक क्वेश्चन में किया था. कौन से क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जल्दी से देखो. देखा क्या बुक में 5 का फर्स्ट पार्ट क्या था, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ऐसा ही था क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट. सेम वैसा ही एक्सप्रेशन यहां पर भी है, बस आर्बिटरी कांस्टेंट चेंज है. यहां पर b था, यहां पर क्या है k है, और यहां 1 था, यहां 9 है. तो सेम प्रोसेस यूज करना है, k के टर्म्स में लाना है पूरे एक्सप्रेशन को और डिफरेंशिएट कर देना. बन जाएगा ये क्वेश्चन. ओके Yes, sir. okay, so that's it with this formulation of differential equation. Now the next topic will be solution of differential equation. Actually formulation is less important as compared to that solution. So next class will be most important, और उसमें solution में ना integration भी use होगा. फॉर्मुलेशन में तो सिर्फ डिफरेंशिएशन यूज होता है, सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन भी यूज होगा. तो जो कुछ फॉर्मूले यूज होंगे मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगा प्री रिक्विजिट. क्लियर. ओके, सो एंड करते हैं आज का सेशन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू. Thank you, sir.